وہ گھر واپس آیا تو گہری دوپہر ہو رہی تھی۔ سردار اور سلیمان حنیفہ کی طرف گئے تھے۔ سلینا نے ان دونوں کو کھانے پر بلایا تھا۔ اس نے کمرے میں جھانکا تو یاسر فائلز میں سر دیے نظر آیا۔ وہ آگے بڑھایا، ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری نگاہ فائل پر۔ تم کھانے پر نہیں گئے؟ بھوک نہیں تھی، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا تھا۔ پھر کچھ یاد آنے پر ارمان کو دیکھا۔ سلینا کو کسی گارڈ نے حملے کی جگہ پر بلایا تھا تاکہ میری چیزیں اسے واپس لے سکے۔ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی کہ سلینا کے پاس میری چیزیں تھیں جو وہ مجھے لوٹانا چاہتی تھی؟ ارمان نے اسے دیکھا، پھر لا علمی سے کندھے اچکائے۔ وہ تم سے ملنے سے پہلے ایجنسی گئی تھی کیا؟ پتہ نہیں، تم ان سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ابھی؟ ہاں ابھی تو وہ دعوتوں میں مصروف ہوگی۔ وہ ہنس دیا تھا۔ صرف 3 مرد ہیں جو آلریڈی وہاں کھانا کھا چکے ہوں گے، ایسی بھی کوئی ولیمے کی دعوت نہیں ہو رہی وہاں۔ تو پھر اسے بلائیں۔ آف کورس، اس نے سر ہلایا اور پھر سامنے تھرا فون اٹھا لیا۔ ارمان نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھ سے فون اچکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سلینا کو بلا رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا، پھر ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ ان کے گھر جاؤ اور انہیں بہت اہتمام سے بلا کر یہاں لاؤ۔ کتنا برا لگے گا جب وہ وہاں سے یہ کہہ کر اٹھیں گی کہ مجھے یاسر بلا رہا ہے۔ ان کی پوزیشن آکورڈ ہو جائے گی۔ تم مجھے میرا فون دو۔ ہرگز نہیں، شرافت سے اٹھو اور سب کے درمیان سے انہیں معذرت کر کے لے کر آؤ۔ اور وہ جو بگڑے نقوش لیے اسے دیکھ رہا تھا، کچھ لمحات بعد گھر کا دروازہ پار کرتا 7 بنے گھر کی جانب پڑا تھا۔ سسپینڈر میں ملبوس 90s کا وجیہہ سا ٹائپ رائٹر۔ اگلے ہی پل وہ حنیفہ کا مختصر دالان عبور کر کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ آیا تھا۔ لاؤنج سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ تینوں سلینا کی کمپنی بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے ماتھے پر بل بے ساختہ ہی ابھرے تھے۔ وہ کھنکار کر اندر داخل ہوا تو سب نے بے اختیار ہی اس کی جانب دیکھا۔ ارے یاسر، آؤ نا، حنیفہ نے اسے دروازے کے پاس ٹھہرتا دیکھ کر کہا تھا۔ وہ آگے بڑھایا، ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ مکمل سیاہ چوڑی دار پجامے اور ٹکنوں تک گرتی فراک میں ملبوس، بالوں کو ہاف باندھے، دوپٹہ گلے میں لپیٹے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام تھا بیٹے؟ جی انکل، میں سلینا کو لینے آیا ہوں۔ مجھے اور ارمان کو کیس کے متعلق اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ سب نے بے ساختہ ہی اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں سلینا، تم جاؤ بچے، حنیفہ نے کہا تو وہ سر ہلاتی مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس کے ساتھ ہی باہر کی جانب بڑھ آئی۔ ان کے جاتے ہی سردار نے چہرہ گھما کر حنیفہ کی جانب دیکھا تھا۔ انہیں جیسے اپنا پھولا بسرا سا کونتا بے ساختہ ہی یاد آیا تھا۔ میرے پوتے کے ساتھ تمہاری بیٹی کی جوڑی کمال لگے گی نا؟ حنیفہ ان کے اچانک سے کہنے پر ساکت ہوئے تھے۔ سلمان مسکراہٹ دبائے سردار کے پرجوش انداز کو دیکھ رہے تھے۔ جی سر، اچھے لگتے ہیں نا ساتھ؟ حنیفہ نے تھوک نکل کر داخلی دروازے کو دیکھا تھا جہاں سے وہ دونوں بس ابھی نکل کر گئے تھے۔ پھر ایک نگاہ سلمان پر ڈالی، دوسری سردار پر۔ اچھے تو لگتے ہیں، لیکن بچے بھی اس بات پر راضی ہوں گے یا نہیں؟ تم راضی ہو؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ سردار نے ان کے جواب پر دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر آنکھیں بند کی تھی۔ انہیں جیسے بہت مزہ آیا تھا۔ پھر وہ ان دونوں کی جانب جھکے، جیسے رازداری سے کچھ بتانا چاہا۔ وہ دونوں بھی ان کی بات سننے کے لیے آگے جھکے تھے۔ ہم ان دونوں کے حق میں ایک سازش کریں گے۔ کیسی سازش؟ سردار کے سرگوشی میں کہنے پر سلمان نے بھی اتنی ہی سرگوشی میں پوچھا تھا۔ ہم ان کا رشتہ طے کر دیں گے، پھر ہم انہیں ایموشنلی بلیک میل کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یاسر کو ایموشنلی بلیک میل کر سکتے ہیں؟ حنیفہ نے قدرے حیرت سے پوچھا تھا۔ دادا اور سلمان نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ حنیفہ کی بات میں بہرحال وزن تھا۔ اس جن کو بلیک میل کرنا بہت مشکل تھا، لیکن دادا نے سر جھٹکا تھا۔ اگر تم نے سلینا سے شادی نہیں کی تو میرا گھر چھوڑ دینا یاسر، ایسے کہوں گا میں اسے۔ سر، وہ آپ کا گھر واقعی چھوڑ دے گا؟ حنیفہ کی بیچارگی سے کہنے پر سلمان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ بالکل، وہ چھوٹا بچہ نہیں ہے، شہر میں اس کا اپنا اپارٹمنٹ ہے، وہ وہاں آ کر آرام سے رہ سکتا ہے۔ سلمان نے بھی حنیفہ کی تائید کی تھی۔ پھر ہم وہ بہانہ کریں گے جو ہر بوڑھے شخص کا آخری حربہ ہوتا ہے۔ ہم اسے کہیں گے کہ ہم سے تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر تم نے سلینا سے شادی نہیں کی تو۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ واقعی آپ سے تعلق نہ توڑ دے۔ اب کہ سلمان نے فکر مندی سے کہا تو حنیفہ کا کہکا ابھرا۔ سردار نے ان دونوں کو قدرے خفگی سے دیکھا تھا۔ ہمیں ایسا ہی کچھ سوچنا ہوگا۔ ایسی کیا دھمکی دیں کہ وہ دونوں اس رشتے پر راضی ہو جائیں؟ ہم ان سے ایک کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں۔ سلمان کے کہنے پر حنیفہ نے ان کی جانب حیرت سے دیکھا تھا۔
कैसा कॉन्ट्रैक्ट? सेलिना को एक अदद गार्ड की ज़रूरत है। वो घर में भी महफूज नहीं है, इसीलिए एक बॉडीगार्ड शौहर चाहिए होगा। यासिर से अच्छा उसे बॉडीगार्ड शौहर नहीं मिल सकेगा। और आप लोगों को लगता है कि यासिर इस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर देगा? उन्हें जैसे बहुत हैरत हुई थी। निगाहों में ऐसा तासुर था गोया इन दोनों की अक्ल पर मातम कर रहे हों। वो एक खुद मुख्तार दराज सा मर्द है, हम उससे उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करवा सकते, इन्होंने कहा और फिर पीछे हो बैठे। वो तीनों ही मायूस नज़र आ रहे थे। उसी पहर बाहर की जानिब बढ़ती सेलिना ने यासिर पर एक निगाह डाली थी। उतरती धूप की रोशनी में वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसे एहसास नहीं हो सका कि वो उसे चेहरा फेरे देख रही है। अगर सामने देखकर ना चला जाए तो कौमी इम्कान यही है कि आप गिर सकती हैं, और अगर आप गिरी तो मैं आपको उठाने के लिए हरगिज़ नहीं रुकूंगा, उसने सामने देखते हुए कहा। तो वो चौंकी, फिर खज्जल होकर सामने देखने लगी। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? बेहतर। रात को ठीक से सोए थे? हाँ। दर्द तो नहीं है ज़ख्म में? नहीं। क्या तुम यकलफ्ज़ी जवाब देकर मुझे गुस्सा दिलाते रहोगे? उसने रुककर पूछ ही लिया। वो जो आगे पड़ रहा था उसे पलट कर देखा। तुम ठीक हो? वो उसके सवाल पर हैरान हुई थी। क्या वो इतने आराम से उसकी बात मान रहा था? रात को ठीक से सोई थी? हाँ। नया घर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या तुम यकलफ्ज़ी जवाब देकर मुझे गुस्सा दिलाती रहोगी? प्लीज़ कोई लंबा सा पैराग्राफ कहो इन सवालात के जवाब में, मज़े से कहा। तो वह ठहरी और फिर यकदम हंसती। वह सर झटक कर मुस्कुराया था। वह अब फिर से साथ साथ चलने लगे थे। कितने बुरे हो तुम। किसी ने मुझसे बारिश में कहा था कि उसे मुझसे हमेशा मिलने पर कुछ और मोहब्बत हो जाती है। कौन था भला वो? तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। उसने गुलाबी होते चेहरे को दोनों हाथों से छुपाया था। वो मैंने गलती से कह दिया था। वो रुक गया, उसे हैरत से देखा, यानी वाकई देखा। क्या तुम गलती से लोगों को ऐसी बातें कहती हो? नहीं। उफ, तुम। उसे जवाब देने की बजाय वो अंदर भाग गई थी। अरमान लॉन्च में ही विराजमान था। उसे अंदर आता देखा तो सीधा हो बैठा। उसे बैठने का इशारा किया तो वो सोफे पर बैठ गई। चेहरा अब तक गुलाबी होकर दहक रहा था। यासिर भी पीछे से चला आया और उसके ऐन सामने रखे सोफे पर आ बैठा। उसने रुख ज़रा सा तिरछा करके अरमान की जानिब कर लिया था। कैसी हैं आप सेलिना? अरमान ने अच्छे मेज़बान की तरह पूछा तो उसने सर हिलाया। मैं ठीक हूँ। क्या तुम मुझसे मिलने से कबल एजेंसी गई थी? अरमान को तहमीद बांधता देकर उसने बराह रास्त सवाल किया तो वह चौंकी। अरमान ने उसे देखकर गहरा सांस लिया था। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। कब? जिस रात तुम पर हमला हुआ था। सामने बैठी सयाल लिबास में मलबूस लड़की ने लम्हे भर को सोचा था। हाँ, मैं गई थी। वो दोनों सीधे हो बैठे थे। क्या तुमने किसी गार्ड से मेरे बारे में पूछा था? उसने संजीदगी से अपनी जानिब इशारा करके पूछा तो वो ठहरी। मैंने तो बहुत से गार्ड से तुम्हारे बारे में पूछा था। क्या तुमने किसी को उन चीज़ों के बारे में बताया था जो तुम मुझे लौटाने वाली थी? उसने फिर याद करना चाहा और सर हिलाया। कुछ गार्ड्स ने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारा क्यों पूछ रही हूँ। तब मैंने उन्हें हाथ में पकड़ा बैग सामने करके दिखाया था कि मुझे तुम्हें तुम्हारी चीज़ें वापस करनी थी। इन दोनों ने उसके जवाब पर एक दूसरे की जानिब देखा था। कुछ पल बाद अरमान किंकार कर सीधा हो बैठा था। साथ रखी फाइल से चंद तस्वीर निकालकर उसके सामने दरमियाने टेबल पर रखी। इसने एक नज़र उन तस्वीर को देखा और फिर अरमान को। ये तमाम वो एक्ट्रेस हैं जो आपकी एजेंसी से ताल्लुक़ रखती हैं और काफ़ी अरसे से गायब हैं। इनमें से एक का कत्ल किया जा चुका है और बाकी की मौजूदगी का इल्म नहीं तो उन्हें लापता करार दिया जा चुका है। आप इन तस्वीर को देखें और बताएं कि आपको इन तमाम एक्ट्रेस में क्या बात कॉमन लगती है। उसने एक नज़र इन दोनों पर डाली और फिर उन तमाम तस्वीर को निगाह चुका कर देखा। ये सब इंतहाई खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। कुछ था कि सामने विराजमान गार्ड आहिस्ता से सीधा हो बैठा था। अरमान भी उसके जवाब पर चौंका था। खूबसूरत? ठहर कर सवालिया सा पूछा तो उसने सर हिलाया। ये सब बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाती हैं इंडस्ट्री में, लेकिन वह आखिर में उलझ कर ठहरी तो अरमान आगे हो बैठा। बगौर उसका चेहरा देखा। लेकिन ये तमाम एक्ट्रेस एक ख़ास किस्म के पैटर्न के तहत खूबसूरत हैं। मतलब? यासिर की आंखों में गहरी नासमझी सी उभरी थी। वह आगे बढ़ी और हल्का सा झुकी, फिर उन तस्वीर को आगे पीछे करके रखा, फिर सबसे पहली तस्वीर पर उंगली रखी। ये एक्ट्रेस इन तमाम एक्ट्रेस में से कम खूबसूरत है। दूसरी उंगली अगली तस्वीर पर रखी, फिर ये। वो उंगली रखती जा रही थी।
उसने लम्हे पर को आंखें सुकेड़ कर उसकी जानिब देखा था। ये सब एक्ट्रेस खूबसूरत हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से कम और ज़्यादा खूबसूरत हैं। मतलब पहले नंबर पर खूबसूरती में ये एक्ट्रेस है और फिर ये वाली उससे ज़रा कम खूबसूरत। मैंने ये तस्वीर उसी तरतीब से रखी हैं। उसने कहकर चेहरा उठाया था। अरमान उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। ओके, और कोई कॉमन बात जो आपको महसूस हो? आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? देखें, हमला आवर ने विक्टिम्स को रैंडम बेस पर नहीं चुना होगा। कोई ना कोई वजह होगी इन सब का चुनाव करने की। अगर हमें वो वजह पता चल जाए तो आधा केस यूं ही हल हो सकता है। उसकी वजाहत पर वह सर हिलाने लगी थी। हो सकता है वो कोई फ़ैन हो और खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ ऑब्सेस्ड हो। अरमान ने उसकी तजवीज़ पर सर हिलाया था। हम इस बात पर भी गौर करते रहे हैं कि शायद वो इन सब एक्ट्रेस का फ़ैन हो और इनकी खूबसूरती से खपती हो, लेकिन अभी तक कोई हतमी नतीजा नहीं निकल सका है। यासिर ने उसी पल फ़ोन निगाहों के सामने किया था, फिर साहिर को पैगाम टाइप करने लगा। किसे मैसेज कर रहे हो? अरमान ने उसके आगे से तस्वीर समेटते हुए पूछा था। साहिर को। मुझे निचले फ्लोर के हमले वाले दिन की फुटेज चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ सेलिना ने किन गार्ड्स को उन चीज़ों के मुतालिक बताया था। मोबाइल से सर उठाए बगैर कहा तो उसने सर हिलाया। चले फिर मुझे इजाज़त दें। फ़िलहाल आप कहीं नहीं जा रही। अरमान ने उसकी बात सुकून से काटी तो वो चौंकी। यासिर ने भी उसे एक नज़र देखा था। वो मुस्कुराता हुआ तस्वीर को फाइल्स में रख रहा था। कोई काम था, बहुत ज़रूरी काम था। कैसा काम? उसने नासमझी से यासिर की जानिब देखते हुए पूछा था। वो भी उसे ही देख रहा था। आज सायरा के लिए रिश्ता लेकर जाना है। बड़े एहतमाम से एक धमाका उन दोनों के सरों पर फटा था। उसने बारी बारी उन दोनों की होनक शक्ल देखी। उफ, पेट में गुदगुदी सी हुई थी। तुमने तो कहा था वो मान नहीं रही। पहला सवाल यासिर की जानिब से उपरा। अरमान टिटाई से मुस्कुराया। अब मान गई है ना? लेकिन रिश्ता आज ऐसे कैसे? सेलिना ने मुंह पर हाथ रखा हुआ था। खुशी से उसकी चीख किसी समय भी निकल सकती थी। बस आज ही लेकर जाना है। हमारे पास शाम तक का वक़्त है। तुमने अंकल को बताया? यासिर ने पूछा तो उसने सर नफ़ी में हिलाया। फिर उन दोनों को देखा। तुम दोनों मेरे साथ चलकर उन्हें अभी बताओगे और उन्हें शाम तक रिश्ता लेकर चलने के लिए राज़ी करोगे। लेकिन यासिर उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो अब उठकर उसके साथ धरी फाइल उठाने लगा था। उसका इरादा फाँम कर अरमान ने यकदम फाइल उचकी तो वो बिगड़ा। ये शराफत से मुझे इधर दो और अपने रिश्ते खुद पक्के करो। मेरे पास वक़्त नहीं है इन सब के लिए। तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? दोस्त मुसीबत में हैं और तुम्हें केस की पड़ी हुई है। स्याह जोड़े में मलबूस लड़की ने हैरत से कहकर उसे नागवार नज़रों से घूरा था। लो जी, जिसका केस है उसे ही कोई परवाह नहीं। वो उसे देखकर रह गया था। ये किसी और का नहीं, आपका केस है मोहतरमा। लेकिन इस केस को लेकर आपकी संजीदगी को सलाम कहना पड़ेगा। तनसन कहकर वो मुड़ने लगा तो अरमान यकदम ही उसके सामने आया। वो भी घूमकर उसके सामने आई थी। उसने इन दोनों को कड़े तेवर लिए देखा था। सामने से हट जाओ। अरमान, आप जाएं। मैं इस ज़िद्दी जिन को लेकर आ रही हूँ। आप श्योर हैं? डैम श्योर। वो हंसी तपाता दाखिली दरवाजे की जानिब भागा तो वो उसकी जानिब मुड़ी। हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें लगता है तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो, वो भी मेरी मर्ज़ी के बगैर? वो हैरान हुआ था। उसने सर हिलाया था। फिर एक कदम आगे बढ़ी तो वो बेइख्तियार पीछे हुआ। वो उसके पीछे होने पर हंसी थी। क्या तुम मुझसे डरते हो यासिर आलम? मैं किसी से नहीं डरता, बिगड़े नकुश लिए कहा था। वो एक कदम और करीब आई थी। यासिर ने बेइख्तियार दूसरा कदम पीछे लिया। तो फिर पीछे क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे दायरे में बगैर इजाज़त के दाखिल हो। सेलिना के आगे पड़ने पर उसने एक कदम फिर पीछे लिया था। वो बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोक रही थी, आंखों में ढेरों शरारत लिए उसे तंग करती हुई। मैं वार्न कर रहा हूँ। उसने उंगली उठाकर मज़ीद आगे बढ़ने से खबरदार किया था। वो कहाँ सुन रही थी भला? गुलाबी लबों को दांतों तले दबाए आगे बढ़ रही थी। यासिर पीछे रख के सोफे से टकराया था। वो ज़रा करीब पड़ी और फिर बिल्कुल आहिस्ता से उसके पीछे रखी फ़ाइल उठा ली। यकदम ही कई कदम पीछे लिखे तो वो चौंका। आंखों में पहले ना समझी और फिर गुस्सा उभरा। ये फ़ाइल वापस करो। ज़रूर, लेकिन रिश्ते की बात करने के बाद। सेलिना। जी यासिर जी। उफ़, उसने ज़ब्त से आंखें बंद की थी। फिर यकदम ही आगे बढ़ा तो वो दूर भागी। फ़ाइल अपने सीने से लगाए वो हंसती हुई उससे दूर जा रही थी। ये तुम्हें नहीं मिलेगी, वापस करो। नहीं। और वो अगले ही पल उसके पीछे भागा था।
खाली पड़े घर में उसके कहके गूंज रहे थे। यासिर उसे मुसलसल तनबीहा करता उसे पकड़ने की तगोदो में था। यह लग थी उसने आगे बढ़कर उसे कोहनी से थामकर अपनी जानिब घुमाया। वो दाखिली दरवाजे के करीब थी। उसके घुमाने पर यकदम ही उसके बेहद करीब आ गई थी। हंसी अगले ही पल सिमटी थी। यासिर भी बेसाख्ता ही ठहर गया था। फाइल, अरमान, शादी, जहन से सब महफ होने लगा था। वो चेहरा उठाए उसे देख रही थी और वह चेहरा चुकाए। दाखिली दरवाजे में यकदम ही सुनहरी सी परियां फिर से उतरने लगी थी। हर जानिब से सुनहरी अफशां गिरकर उन दोनों को सुनहरा करती जा रही थी। तुम्हारी आंखें, सेलिना ने हल्का सा कहा था। मेरी आंखें क्या? वो जैसे उसका अगला जुमला सुनने के लिए बेताब हुआ था। साथ ही गले में गिल्टी सी ऊपर के मातूम हुई। इतनी खूबसूरत हैं। वो जैसे किसी ख्वाब के ज़ेरे असर बोली थी। अगले ही पल उसने किसी तलस्सुम में घिर कर हाथ उठाया था। यासिर ने एक पल को उसके अपनी जानिब बढ़ते हाथ को देखा और फिर उसे। वो करीब था कि वो उसे छू लेती, लेकिन वो यकदम ही दूर भागी थी। वो जैसे किसी ख्वाब से जागा, चौंका, उसे देखा। वो अब हंस रही थी। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, मेरी पसंदीदा आंखें, लेकिन अभी मेरी दोस्त मेरे लिए ज़्यादा अहम है, इसीलिए तुम्हें ये फ़ाइल नहीं मिलेगी। वो गेट से निकलकर अब अपने घर में दाखिल हो रही थी। वो उसके पीछे ही था। दाखिली दरवाजे में आगे पीछे वो दोनों दाखिल हुए तो सब ने उनकी जानिब देखा। सेलिना ने फ़ाइल सीने से लगा रखी थी और हंस हंस कर उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था, जबकि यासिर का चेहरा शदीद बेबसी का मुजाहरा कर रहा था। यासिर आपसे बात करने आया है बाबा। अरमान ने फ़ौरन मलगूबा उस पर डाला तो उसने आखिरकार गहरा सांस लिया। एक कहर आलूद निगाह अरमान पर डालकर आगे बढ़ाया। सब चेहरा उठाए उसे ही देख रहे थे। वो सोफे पर आकर बैठा और सबको देखा। एक निगाह सेलिना पर भी डाली। उफ, जाने क्यों उस पर गुस्सा नहीं आता था। अरमान शादी कर रहा है, हमें आज उसके लिए रिश्ता लेकर जाना है, सेलिना की दोस्त सायरा के यहाँ। उसने बात का आगाज़ किया तो सब चौंके। सलमान अगले ही पल सीधे हो बैठे थे। हॉस्पिटल के बाहर तुमने सायरा को प्रपोज़ किया था? उन्होंने सीधा अरमान से पूछा तो वो गड़बड़ाया, फिर जल्दी से सर हिलाया। जी। हर जानिब खामोशी सी छा गई थी। फिर सरदार खिंकार कर सीधे हो बैठे। मुझे नहीं लगता कि सायरा में कोई ख़राबी है, बहुत अच्छी बच्ची है। अगर अरमान उससे शादी करना चाहता है तो रिश्ता ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन वहाँ जाने से कबल मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। अरमान की संजीदा आवाज़ उभरी तो सब ने उसकी जानिब देखा। वो यकदम ही बहुत संजीदा नज़र आ रहा था। लम्हे भर की शरारत आंखों से मफकूद थी। सायरा की माँ कोमा में है, वो बात नहीं कर सकती, ना ही हरकत कर सकती हैं, ना ही किसी काम को करने पर कादिर हैं। वो सायरा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और मैं उन्हें उसी हिस्से के साथ कबूल कर रहा हूँ। सायरा किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कोई भी उन्हें उनकी माँ की जिम्मेदारियों के साथ कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। आप लोग उनकी माँ से ऐसे ही रिश्ते की मुतल्लिक बात करेंगे जैसे किसी भी दूसरे इंसान से करते हैं। मैं नहीं चाहता कि सायरा को किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स हो। उसने चेहरा उठाकर सलमान की जानिब देखा था। माहौल संजीदगी इख्तियार कर गया था। फिर सलमान यकदम ही उठ खड़े हुए तो सब ने चेहरे उठाकर उन्हें देखा। वो लम्हे पर को ठहरे थे, फिर चेहरा अरमान की जानिब घुमाया। क्या सायरा इस रिश्ते के लिए राज़ी है? उसने थूक निकलकर सर अस्पात में हिलाया था। तुम कहाँ जा रहे हो? दादा ने पूछा तो उन्होंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। आप लोगों को रिश्ता लेकर नहीं चलना क्या? और हनीफा समेत सब ने गहरा सांस लिया था। फिर सब हंस पड़े। सलमान मुस्कुराकर आगे बढ़ाए थे, फिर चेहरा झुकाकर सुन हुए अरमान को देखा। बाबा, मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी मान जाएंगे। वो बेसाख्ता उनके गले लग गया था। सलमान ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा। इस जोकर की भी शादी होगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लॉन्च में यकदम फिर से कह के उभरे थे। सेलिना ने बेसाख्ता ही आंखें रगड़ी थी। खुशी के आंसू गिरने के लिए बेताब थे। यासिर ने बेसाख्ता एक निगाह उस पर डाली। वो अब हनीफा और दादा के साथ मिलकर मुस्कुरा रही थी। अगले ही लम्हात में मुलाजमीन की दौड़ें लगवाई गई। मिठाइयाँ, लवाजमात, कपड़े इस्त्री करने की सदाएँ, दोनों घरों में यकदम हलचल सी मच गई थी। सेलिना अब भाग भाग कर मुलाजमीन के साथ गाड़ियों में मिठाई के टोकरे रखवा रही थी। सरदार, हनीफा, सलेमान तीनों सफ़ेद कॉटन के कमीज़ शलवार में मलबूस बाहर निकल रहे थे। उसने भी गुलाबी सिलक की कमीज़ शलवार के साथ नेट का कामदार दुपट्टा ले रखा था। सफ़ेद पत्थर नुमा टॉप्स कानों में पहने, बालों को यूं ही खुला छोड़े वो खूबसूरत लग रही थी। यासिर सस्पेंडर में ही मलबूस था, लेकिन अरमान ने कुर्ता शलवार पहन लिया था। अगले ही पल खुशगवार सी हलचल में वो गाड़ियों में बैठकर सायरा के घर रवाना हुए थे। सायरा के घर में आज बहार उतर आई थी।
एक खूबसूरत पहाड़। मगरिब बीत चुकी थी, इशा का वक्त शुरू हुआ चाहता था। पहले सूफिया बेगम से बाकायदा रिश्ते की बात की गई। सायरा और सेलिना की आंखों में आंसू थे। फिर सब उठकर लॉन्च में चले आए। वो अब सायरा के साथ मिलकर ट्रॉली में चाय और लवाजिमात सजाए ला रही थी। कुछ पल बाद सायरा सलमान के साथ सोफे पर बैठी उनसे धीमे लहजे में बात कर रही थी। हनीफा और यासिर एक जानिब सोफे पर बैठे थे और सरदार अरमान के साथ विराजमान थे। सच शुक्र के एक बहू तो आएगी, उन्होंने कहा तो अरमान ने मुस्कुराहट दबाई। ये ख्वाहिश भी आपकी मैं ही पूरी कर रहा हूँ दादा, आपके पोते से तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। सरदार ने कदरे खुफकी से हनीफा के साथ बैठे यासिर की जानिब देखा था। वह अब हनीफा की किसी बात के जवाब में सर हिलाकर कुछ कह रहा था। फिर यूं ही चेहरा उठाकर सेलिना की जानिब देखा। लम्हे भर को उसे कुछ खटका था। वो चौंका था बुरी तरह। वो बालों को कान के पीछे अड़सती हनीफा की किसी बात पर हंस रही थी और वह खूबसूरत लग रही थी। यह लग थी इसे वो तस्वीर याद आई। बिल्कुल शुरू में ही हनीफा ने उसे बताया था कि जूलिया को भी सिक्योरिटी थ्रेट्स मिले थे। वो जूलिया से ज़्यादा खूबसूरत थी और हमला ओवर इन तमाम एक्ट्रेस को इनकी खूबसूरती के हिसाब से हमले का निशाना बनाता रहा था। पहले सबसे कम खूबसूरत एक्ट्रेस उसके निशाने पर रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत एक्ट्रेस की जानिब पढ़ने लगा। उसी पल अपने अपार्टमेंट में दाखिल होती जूलिया को कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ था। उसने राहदारी की बत्ती रोशन की तो लम्हे पर को साकित हो गई। किसी ने अगले ही पल उसकी नाक और मुंह पर रुमाल रखा था, अजीब सी बदबू वाला रुमाल जो जहन को गहरी गुनूदगी में डुबो दिया करता था। कोई अब उसका बेहोश वजूद पीछे की जानिब घसीट रहा था। यासिर अगले ही पल उठा और मोबाइल निगाहों के सामने किया। साहिर ने अगले ही पल फ़ोन उठाया था। फ़ौरन जूलिया मैडम को देखो, क्या वो महफूज हैं? उसने बेचैनी से फ़ोन कान से हटाया था। वो सबसे आखिर में सेलिना को निशाना बनाने वाला था क्योंकि वो इन तमाम एक्ट्रेस में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे अब तक ये बात तंग करती रही थी कि वो सेलिना पर हमला करने में इतनी हिचकिचाहट का शिकार क्यों था। हमला और तय नहीं कर पा रहा था कि सेलिना और जूलिया में से कौन ज़्यादा खूबसूरत थी। अगले ही पल फ़ोन बजा तो उसने झट फ़ोन उठाया। जूलिया मैडम अपने अपार्टमेंट में नहीं है। कोई मुज़ाहमत के आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। वो अपना फ़ोन नहीं उठा रही। एजेंसी से उनके शेड्यूल के मुतालिक मालूम किया तो उन्होंने बताया कि वो इस हफ्ते फारिग हैं और आज की रात हमला ओवर ने तय कर लिया था कि सेलिना वाक़तन खूबसूरत थी, इसीलिए उसने जूलिया को निशाना बनाया था। स्याह जैकेट, स्याह कैप को कतरे आगे किए, खुरदरे हाथों में दस्ताने पहने वो अब ड्राइव कर रहा था। वो किसी औषधि पेशेंट के हाथ थे। उनकी जिल्द बार बार धोने पर उतरी हुई लगती थी। पिछली सीट पर बेहोश हुई जूलिया को रस्सियों से जकड़ कर लिटा रखा था। जूलिया अगवा हो गई है साहिर और अगला हदफ सेलिना मज़र है, आखिरी और 7वां विक्टिम। सामने से आती सेलिना अब हाथ में मिठाई की प्लेट लिए उसकी जानिब पड़ रही थी। कदीम वक्तों में एक बादशाह हुआ करता था। उसे शादियाँ करने का बेहद शौक़ था। वो खूबसूरत औरतों से शादियाँ किया करता था और हर चंद दिन बाद उसकी बीवियाँ गायब हो जाया करती थी। एक दिन उसने शादी की एक खूबसूरत लड़की से और फिर उस खूबसूरत लड़की ने खोल लिया वो दरवाज़ा कि जिस दरवाजे को खोलने की ना थी उसे इजाज़त। अगले ही पल वो खूबसूरत लड़की खौफज़दा होकर पीछे हटी थी। वो अब तक सामने से आती सेलिना को देख रहा था। उस बंद दरवाजे के पार लटकी थी लाशें उन तमाम खूबसूरत बीवियों की। स्याह जैकेट वाला अब जूलिया को कंधे पर डाले आगे बढ़ रहा था। वो एक सुनसान जगह बने महल नुमा घर में दाखिल होकर अब उसके निचले तह खाने में जाते सीने अबूर कर रहा था। निचला तह खाना स्याह था। हर जानिब अजीब जंदान से बने थे जिनमें एक्ट्रेस कैद थी, उसकी होने वाली खूबसूरत बीवियाँ। यासिर ने फ़ोन कान से नीचे कर लिया था। सेलिना उसके करीब चली आई थी। वो बस उसे आंखें उठाकर देख रहा था। हमला ओवर अब जूलिया को एक तख्त पर लिटा रहा था। वो अब अपने खुरदरे हाथों से उसकी गर्दन, चेहरे और कंधे पर हाथ फेर रहा था। उसका अंदाज ऐसा था कि जिसम पर चूंटियाँ रेंगने लगती थी। क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम उससे बहुत खूबसूरत लगती हो? उसने एक पल को ठहर कर पूछा था। वो उसके बेवकत के सवाल पर चौंकी, चेहरे पर नासमझी सी उभरी। क्या कभी किसी ने तुम्हें ऐसा कहा है? ऐसे तो मुझे बहुत लोग कहते हैं यासिर, तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? इसे उसका अंदाज झटका गया था। उसने नफ़ी में सर हिलाया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वो उसे समझाने के से अंदाज में कह रहा था। तुम्हें अब जो भी ऐसे कहे तो उससे दूर भागना। किसी भी तरह ऐसे शख्स के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करे तो तुमने शोर मचाना है, उसे अपने करीब नहीं आने देना, ठीक है? यासिर तुम ऐसे। वो उलझकर उसे देख रही थी।
لیکن اس کا مسلسل بجتا فون اب اسے مزید بات کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ فون کو کان سے لگائے گھر سے باہر پڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جولیا اغوا ہو گئی تھی۔ سائیکوپیتھ حملہ آور اس بادشاہ سے متاثر تھا جو اپنی خوبصورت بیویوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ وہ خود کو بادشاہ تصور کرتا تھا جس کی کئی خوبصورت بیویاں تھیں۔ وہ ایک پاگل شخص تھا۔ سیلینا مٹھائی کی پلیٹ ہاتھ میں لیے ہی گیٹ تک آئی تھی لیکن یاسر جا چکا تھا کیونکہ وہ اب کہیں نہیں تھا۔ کھردرے ہاتھوں والا شخص اب تک جولیا کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کا انداز سب بہت جانا پہچانا تھا کیونکہ وہ مصطفیٰ حسن کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا، ان کا انتہائی لاڈلا بیٹا۔ سیاہی میں دو مجسمے بالکل خاموشی سے براجمان تھے۔ ایک سایہ کسی لڑکی کا تھا، وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ براجمان تھی۔ ان کے سائے سامنے دیوار پر لمبے ہو کر گر رہے تھے۔ وہ لڑکی آہستہ سے ساتھ براجمان انسان سے کچھ بولی تھی، میں ان کو تباہ کر دوں گی، میں ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ سب بہت رسکی ہوگا؟ میں جانتی ہوں کہ یہ سب بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے لیکن میں نے اس وقت کے لیے بہت طویل عرصے سے انتظار کیا ہے۔ لوہا گرم ہے اور اب چوٹ مارنے کا درست وقت ہے، ہم نہیں چوک سکتے۔ ادھیڑ عمر شخص کا سایہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر سر ہلایا۔ میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں، خیال رکھنا، اب چلتا ہوں۔ سایہ آگے بڑھا تو ہر جانب خاموشی چھا گئی۔ لڑکی کے پاس اب بات کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ وہ اب سامنے دیوار پر پڑتے اپنے سائے کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ جس نے اسے تباہ کیا ہے وہ انہیں انجام تک پہنچائے گی۔ اس کا ہر لائحہ عمل طے تھا۔ وہ ایجنسی چلا آیا تھا، انہی سسپینڈرز میں ملبوس، اسے لباس تبدیل کرنے کا وقت نہیں مل سکا تھا۔ ایجنسی کے پارکنگ ایریا میں ساحر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اپنی کار سے باہر نکلا تو ساحر آگے بڑھایا۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، پھر ساحر کی جانب دیکھا۔ کنفرم ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہیں، تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ رخ ایجنسی سے ذرا فاصلے پر بنی پرتش عمارت کی جانب تھا۔ وہ اغوا ہی ہوئی ہیں ساحر۔ حملہ آور فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ سیلینا اور جولیا میں سے کون زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے ایک خاص ترتیب سے ایکٹریس کو اغوا کیا ہے اور جب اس نے یہ طے کر لیا کہ جولیا سیلینا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس نے جولیا کو پہلے اغوا کر لیا۔ چھٹا وکٹم، اس کی ساتویں وکٹم سیلینا ہے۔ وہ تیز سے بولتا اب لفٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ ساحر بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اس کی بات سن کر وہ لمحے پر کو حیران بھی ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ وہ اس خاص ترتیب سے ایکٹریس کو اغوا کر رہا ہے؟ سیلینا نے ڈی کوڈ کیا ہے۔ اس نے جس ترتیب سے تمام ایکٹریس کی تصاویر رکھی، حملہ آور نے اسی ترتیب سے سب کو اغوا کیا ہے۔ کیا تم ظالم بادشاہ کی کہانی جانتے ہو؟ لفٹ سے نکل کر اب وہ دونوں ہی جولیا کے اپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ساحر نے اس کے سوال پر ناسمجھی سے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا، بس لمحے پر کے لیے۔ سائیکوپیتھ حملہ آور خود کو بادشاہ سمجھ رہا ہے، وہ بادشاہ جس نے بہت سی خوبصورت عورتوں سے شادی کر رکھی تھی اور ایک خاص عرصے کے بعد وہ اپنی بیویوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے کہا تو ساحر کی آنکھیں پھیل گئی۔ کیا؟ ہاں، وہ سائیکو ہے، اس سے کچھ بعید نہیں۔ اب وہ دونوں جولیا کے اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہے تھے۔ اپارٹمنٹ میں مزاحمت کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس لیا تھا۔ تم نے اس کے ہر ایکٹیو کانٹیکٹ سے پوچھا ہے نا؟ ہاں، وہ کہیں نہیں ہے۔ اس نے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی قدرے بے بسی سے۔ ہمیں 1-2 دن انتظار کرنا پڑے گا، پھر ہی اس کی اغوا کی رپورٹ ہم آگے بتا سکتے ہیں۔ بالکل، ابھی ہمیں خود کنفرم نہیں ہے کہ وہ اغوا ہوئی ہیں یا اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہیں۔ ایکٹریس اکثر منظر عام سے غائب ہو جاتی ہیں لیکن کسی پروجیکٹ کے عین درمیان میں غائب ہونا بہت اچنبھے کی بات ہے۔ ان کا مینیجر ان کی غیر موجودگی کل یا پرسوں تک خود ہی رپورٹ کر دے گا۔ ساحر نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ایک گہری نظر اپارٹمنٹ پر ڈالی۔ کیا ہمیں ان کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لینی چاہیے؟ ساحر نے کہا تو اس نے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ ہم دونوں ہی یہ کام نہیں کریں گے۔ ساحر نے بغیر اثر لیے گہرا سانس لیا۔ ہم بغیر سرچ وارنٹ کے کسی کے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اب آگے بڑھ کر پرتش سے اپارٹمنٹ میں موجود چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ پیچھے کھڑے یاسر نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھایا۔ سدھر جاؤ ساحر، ہماری نیت خراب نہیں ہے، ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہم انہیں خطرے سے بچانا چاہتے ہیں۔ پولیس تک معاملہ گیا تو بہت پیچیدگی ہو جائے گی، ہمیں اس سے پہلے ہی گھر کی تلاشی لے لینی چاہیے۔ اب وہ بھی اس کے ساتھ لگا ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھائے ایک ایک چیز کی تلاشی لے رہا تھا، لیکن 1 آدھ گھنٹے کی محنت کے بعد بھی ان کے ہاتھ کوئی قابل غور شے نہیں لگی تھی۔
कुछ पल बाद वो दोनों ही अपार्टमेंट का दरवाज़ा अपने पीछे बंद करते बाहर निकल आए थे। साहिर ने एक निगाह उस पर डाली थी। तुम्हारे लिए इतना चलना फिरना ठीक नहीं है अभी। यासिर ने बेसारियत से सर झटका था। पक चुका हूँ मैं ये एहतियाती तदबीर सुन सुनकर। अब प्लीज़ तुम शुरू मत होना। साहिर ने कंधे उचकाए थे। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि इतना चलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम इसके आगे क्या करते हो ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। ज़ख्म में तकलीफ़ हुई तो तुम खुद ही भुगतोगे, हम में से कोई नहीं। बहुत शुक्रिया बताने के लिए, साहिर ने ठंडे से तंज से कहा था। लेकिन वो मजाल है जो उस तंज का ज़रा भी असर ले लेता। अब वो दोनों इमारत के दाखिली दरवाजे से निकलकर बाहर की जानिब बढ़ रहे थे। उन दोनों का रुख वापस एजेंसी की जानिब था। तुमसे जो फुटेज मैंने मांगी थी वो निकाली? हाँ। उसके जवाब पर वो कदम और तेज़ी से बढ़ाता एजेंसी के अंदर चला जा रहा था। कुछ ही पल बाद अब वो दोनों निचले फ्लोर पर लिफ्ट के ज़रिए बढ़ रहे थे। निचला फ्लोर रात गहरी होने के बायस तकरीबन सुनसान था। इक्का दुक्का गार्ड्स अपने अपने कैबिन्स में विराजमान काम निपटा रहे थे। यासिर को कई दिनों बाद एजेंसी में देखकर इधर उधर से सलाम उभरे तो उसने माथे तक हाथ ले जाकर सबका सलाम का जवाब दिया। अब वो दोनों अपने कैबिन्स की जानिब बढ़ आए थे। कैबिन वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था, साफ़ सुथरा, सलीके से सब कुछ रखा हुआ। ये कैबिन अब तक शेर साफ़ करता है? उसने हल्का सा मुस्कुरा कर पूछा तो साहिर ने सर हिलाया। बिल्कुल। रात देर तक यहाँ ठहरकर वो अक्सर फाइल्स को सलीके से रखने की जाने कौन सी मशक़ें करता रहता है। ये और उसकी सफाई करने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है? अगर वो नहीं होता तो तुम्हारा कैबिन देखने के काबिल भी नहीं होता। मुझे चीज़ें दरहम बरहम अंदाज में ही अच्छी लगती हैं, बिला वजह के सलीके से मुझे उलझन होती है। वो अब मुस्कुराकर सर हिलाता कुर्सी खींचकर बैठ रहा था। साहिर अब उसके सामने अपना खुला लैपटॉप रख रहा था। वो बगौर उस चंद लम्हात की फुटेज को बार बार देखता रहा। उसने वाक़तन सब गार्ड्स को ही बताया था। फुटेज हर शकूक व शुबहात से पाक थी, वहाँ कुछ भी गैर मामूली नहीं था। उसने साथ झुके साहिर को एक पल के लिए देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि जो कोई भी है वो हमारी एजेंसी से ही ताल्लुक़ रखता है? उसने पूछा तो साहिर सीधा हो गया, फिर साथ रखी कुर्सी खींची और उसके बराबर आ बैठा। निचला फ्लोर मज़ीद तारीकी में डूबा महसूस होने लगा था। महज उनके कैबिन की बत्ती रोशन थी। क्या तुम्हें यकीन है? उसने उल्टा सवाल किया तो यासिर ने कंधे उचकाए। एक नज़र सामने अस्टेल हुई फुटेज पर डाली। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा था। शायद उसने हमें ऐसा तासुर दिया हो कि वो एजेंसी से वाबस्ता हो सकता है हकीकत इसके बरक्स हो। साहिर चुपचाप साकित हुई फुटेज को देखता रहा था। हो सकता है वो एजेंसी से हो सकता है वो हमें मिसडायरेक्ट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल कुछ भी वो शौक़ से नहीं कहा जा सकता। मोहित हसन, वाजिद हसन, ज़ुबैर एंड सन्स का छोटा बेटा, क्या इन तीनों में से कोई है? फुटेज की जानिब देखता वो खुद कलामी कर रहा था। नज़रों में गहरी सोच हलकोरे ले रही थी। साहिर ने लम्हे पर को सरनवी में हिलाया था। या फिर ये कोई तीसरा बंदा है, एक तीसरा इंसान, एक ऐसा इंसान जिस पर हम शक करने का सोच भी नहीं सकते। उसके बेहद खामोशी से कहने पर यासिर ने बेसाख्ता गर्दन उसकी जानिब फेरी थी। साहिर ने महज उसे एक निगाह उठाकर देखा। उसे एजेंसी के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों का इल्म है। उसे निचले फ्लोर के खुफिया दरवाज़ों का इल्म भी है। वो हमारे अंदर ही मौजूद है, या फिर हमें ऐसा तासुर दे रहा है जैसे वो हमारे दरमियान मौजूद है और दर हकीकत मौजूद ना हो। जितना सिख ये आदमी है उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। उसके कहने पर साथ विराजमान यासिर ने सर हिलाया था। ज़्यादा चलने के बाद ज़ख्म में खासा खिंचाव महसूस हो रहा था और दर्द भी बढ़ रहा था। अगले ही पल उसने आसपास गर्दन घुमा कर देखा था। ज़ार क्या कर रहा है आजकल? मुझे काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आया वो। उसने सरसरी सा पूछा था। साहिर अब आगे बढ़कर लैपटॉप बंद कर रहा था। ज़ार वहीद असलम को गार्ड कर रहा है आजकल, पाकिस्तान में नहीं है वो। पिछले 2 दिनों से दुबई गया है उनके साथ, वहाँ शूटिंग थी इसलिए गार्ड्स की ज़रूरत थी। हनीफा सर ने भेज दिया उसे। तुम अब सलीना मैडम को गार्ड करोगे तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी, शायद मेरी भी नहीं। कि आखिरी जुमला उसने ज़रा मुस्कुराहट तपा कर कहा था। यासिर उसके अंदाज़ पर हल्का सा ठिठका था। क्या मतलब है इस फजूल सी बात का? बिल्कुल साफ मतलब है। और क्या है वो साफ मतलब? हाथ बांध कर पूछा था। साहिर अब लैपटॉप लिए कुर्सी से उठ रहा था। तुम उन्हें पसंद करते हो? बिल्कुल सुकून से कहा। वो हनीफा या सरदार नहीं था जो यासिर से बातें करने में हिचकिचाहट महसूस करता। वो साहिर था और यासिर जानता था कि वो अपने नाम का एक ही था।
میں تو اب تک حیران ہوں کہ وہ تمہیں اتنی خوفناک بارش میں اتنے آرام سے مل کیسے گئی تھی۔ وہ اب ڈیسک سے ٹیک لگائے، ہاتھ سینے پر باندھے محظوظ سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یاسر نے چہرہ جھکا رکھا تھا، وہ اپنے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ میرے پاس ہی آ رہی ہوگی۔ کچھ پل بعد اس نے آہستہ سے کہا۔ ساحر نہیں چونکا، وہ جانتا تھا۔ میں جب ہاسپٹل سے باہر نکلا تو کچھ دور چلنے کے بعد ہی وہ مجھے مل گئی تھی۔ وہ ہر تکلیف پر مجھ تک بغیر کسی وجہ کے چلی آتی ہے، اسے یہ بات خود بھی نہیں پتہ۔ وہ غیر ارادی طور پر ایسا کرتی ہے۔ بالکل، میں انہیں ہر جگہ ڈھونڈتا رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ تمہارے پاس آئی ہوں۔ جب میں ہاسپٹل کے راستے پر واپس لوٹا تو وہ تمہیں مار رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ چہرہ جھکائے ہی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ میں بس حیران ہوں کہ اگر وہ تمہیں اس راستے پر نہیں ملتی تو تم کیا کرتے؟ اس نے اگلے ہی پل چہرہ اٹھایا تھا۔ ہر گلی ڈھونڈتا، ہر کوچہ کھنگالتا، راہ چلتے لوگوں سے اس کے متعلق پوچھتا، دوسرے لفظوں میں ان کے لیے خوار ہوتے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ تو تم مان رہے ہو کہ تم انہیں پسند کرتے ہو؟ ہاتھ اب تک بندھے تھے اور وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا۔ یاسر نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچ کر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تم ان کے لیے خوار ہو سکتے ہو، ان کے لیے زخمی حالت میں بارش میں بھیگ سکتے ہو، انہیں خود کو ہاتھ لگانے دے سکتے ہو، ان کے لیے گولیاں کھا سکتے ہو، ان کے لیے رپورٹرز کو چھاڑ سکتے ہو، ان کے لیے چیف حنیفہ سے طلب کلامی کر سکتے ہو، ان کے لیے ماڈل بن سکتے ہو۔ ہاں، لیکن تم انہیں پسند نہیں کرتے۔ تالیاں بجانے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ ساحر کا انداز ویسا ہی تھا۔ بالکل نہیں کرتا میں اسے پسند۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھ سے جھوٹ بول لو، لیکن کم از کم خود سے تو نہ بولو۔ میں جانتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میرے پاس جھوٹ بولنے کا کوئی ریزن نہیں، بالکل سکون سے کہا تھا۔ ساحر اسے چند پل دیکھتا رہا تھا، پھر آہستہ سے سیدھا ہوا۔ وہ جیسے حیران ہوا تھا۔ تم انہیں؟ ہاں ساحر، تم ٹھیک سمجھے ہو۔ اب وہ اٹھ رہا تھا، زخم میں کھچاؤ ہنوز تھا، لیکن چہرے پر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ ساحر اس کی پشت کو بے یقینی سے دیکھے گیا تھا۔ تم ان سے محبت کرتے ہو؟ وہ جو دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، لمحے پر کو رکا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب تک تھی۔ وہ پلٹا نہیں، زحمت ہی نہیں کی پلٹنے کی۔ تصدیق کرو ساحر، میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ اور پھر آگے بڑھ گیا۔ ساحر کے لب اب تک آدھ کھلے تھے۔ اسے یاسر سے ایسی کسی انکشاف کی توقع ہرگز نہیں تھی، وہ بھی اتنے صاف انداز میں جیسے وہ موسم کی کوئی خبر سنا رہا تھا۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، پھر اسی انداز میں چند پل کے لیے دروازے کو دیکھے گیا جہاں سے وہ ابھی ابھی گیا تھا۔ وہ جب گھر واپس لوٹا تو چونک کر دروازے میں ہی ٹھہر گیا۔ حنیفہ کے گھر کے سامنے ایک جانی پہچانی سی کار کھڑی تھی۔ اس کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہ سامنے سے آتے ارمان کو دیکھ کر چونکا۔ تم لوگ کب واپس آئے؟ کچھ دیر پہلے ہی۔ دادا انکل میرے گھر ہیں، تمہاری ماما آئی ہیں سلینا سے ملنے، ان کا موڈ بہت آف لگ رہا تھا، اس لیے میں نے کسی کو بھی وہاں جانے نہیں دیا۔ وہ سلینا سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ماتھے پر بل ابھر چکے تھے۔ وہ ارمان کو منع کرنے کے باوجود بھی آگے بڑھا تو اس نے اسے روک لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے ان سے دو ٹوک بات کرنے دو، بدلحاظ مت بنو، باقی سب خیر ہے۔ میں کبھی بدلحاظ نہیں ہوا، بس صاف کو رہا ہوں، اسے ہی بدلحاظی کہتے ہیں۔ ارمان نے اسے ٹوکا تھا، لیکن وہ بغیر سنے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اب چہرہ پھیرے اسے قدرے فکر مندی سے تک رہا تھا۔ وہ اندر بڑھ آیا تھا، لیکن پھر داخلی دروازے کے ڈور نوب پر اس کا ہاتھ ٹھہر سا گیا تھا۔ اندر سے سلطانہ کی بے حد سرد آواز آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے بیٹے سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، اور تم اب اس کے ساتھ ایک دیوار پر رہ رہی ہو۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ کیا تمہیں ایک دفعہ کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اندر کا منظر خاصی سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ سلینا نے ہاتھوں کو آپس میں مس کیا تھا۔ اسے لگا اس کی ہتھیلیاں پسیجتی جا رہی ہیں۔ اس نے کہنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن الفاظ نہیں نکلے۔ تمہاری بری شہرت اس کی ساکھ پر کیسا اثر ڈالے گی، کبھی سوچا ہے تم نے؟ کیا تم اتنی بے وقوف ہو کہ کبھی ایسا کوئی خیال تمہارے ذہن میں آیا ہی نہیں؟ آخر میں قدرے درستی سے کہا تو اس سامنے بیٹھی سلینا نے تھوک نکلا۔ اس نے وہی گلابی رنگ پہن رکھا تھا جو وہ سائرہ کے گھر پہن کر گئی تھی۔ سلطانہ نے اسے اتنی بھی مہلت نہیں دی تھی کہ وہ لباس ہی تبدیل کر لیتی۔ آئی ایم سوری آنٹی، مجھے تمہاری اس بکواس سے سوری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جانتی ہو نا تم یہ بات؟ جی، کمزور سی آواز میں کہا تو سلطانہ کو اس کے انداز پر مزید غصہ آنے لگا۔ ایک میرا بیٹا ہے
کہ تمہارے لیے مجھ سے فیور مانگنے چلا آیا تھا، اور ایک تم ہو کہ اس کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ کل شوٹ پر آ جانا، میں اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ تمہارا آس پاس ہونا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ سیلینا نہیں اٹھ سکی۔ وہ اس کے انکشاف پر پوری طرح چونکی تھی، لیکن باہر کی جانب بڑھتی سلطانہ کے قدم لمحے بھر کو ساکت ہو گئے تھے۔ داخلی دروازہ دھکیل کر اب یاسر اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ حد نہیں۔ وہ دونوں ہی لمحے بھر کو ایک دوسرے کے سامنے ٹھہر گئے تھے۔ پیچھے سیلینا بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یاسر کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا۔ بابا کو بھی اسی لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا نا آپ نے، کیونکہ وہ آپ کی ساکھ کے لیے مہلک ثابت ہو رہے تھے۔ آپ نے ان کی موت کی خبر کو بھی ایک ڈرامہ کہا تھا۔ آپ نے اپنی شہرت کو بے داغ رکھنے کے لیے اپنے بیٹے اور شوہر دونوں کو چھوڑ دیا تھا ماں، لیکن آپ کو یہ کیوں لگا کہ میں بھی آپ کی طرح ہوں؟ وہ ایک پل کے لیے رکا تھا۔ سیلینا کو اس کی آنکھیں اتنی دور سے بھی زخمی لگ رہی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ مجھے اپنی ساکھ اتنی عزیز ہوگی کہ میں اپنے سے جڑے لوگوں کو اس کے لیے چھوڑ دوں گا؟ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ جس چیز کے لیے میں آپ سے ساری زندگی نفرت کرتا رہا وہ کام میں خود کروں گا؟ آپ نے کبھی بابا کیا مجھے اپنے اس نام نہاد اسٹیٹس سے اوپر نہیں رکھا؟ میرا بچپن جس محروم اذیت میں گزرا، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں ایسی کسی محرومی کو اپنے سے جڑے لوگوں کی زندگی میں داخل ہونے دوں گا؟ اس کی آنکھوں میں زخمی سی تپش تھی۔ سلطانہ کو لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ یاسر اس سے ساری زندگی نفرت کیوں کرتا آیا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ یاسر نے ضبط سے گہرا سانس لیا تھا۔ تو پھر ماں کی طرح رہیں، مجھے اذیت سے دو چار مت کیا کریں، اور پلیز میرے سامنے مت آیا کریں۔ مجھے ہسپتال کی وہ ٹھنڈک یاد آ جاتی ہے جسے بھلانے کے لیے میں نے جانے کتنی ہی راتیں جا کر گزاری تھی۔ مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور مت کرے ماں۔ تم اس لڑکی کے لیے اپنی ماں کو ایسے کہہ رہے ہو؟ وہ بے یقینی سے کپکپاتی آواز میں بولی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں یہ آپ کو اس لڑکی کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ میں یہ سب آپ کو صرف اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آپ میری زندگی میں دخل نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، یہ سب میں طے کروں گا۔ آپ نے بابا اور مجھے چھوڑ کر جو عزت کمائی ہے اس کی حفاظت کریں۔ میری زندگی پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ کہہ کر پلٹنے لگا تھا، لیکن پھر لمحے پر کو ٹھہر گیا۔ ایک پل کے لیے مڑ کر سیلینا کی جانب دیکھا، پھر زخمی آنکھوں سے سلطانہ کا سفید چہرہ دیکھا۔ یہ لڑکی اپنے رشتے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ماں۔ بس مجھے آپ سے یہی کہنا تھا۔ وہ تیزی سے کہہ کر پلٹا اور پھر لمبے لمبے ڈگ پڑتا باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے کھڑی دونوں عورتیں اس کی اس آخری بات پر تھم گئی تھیں۔ وہ بے دم سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور سلطانہ لرزتے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے لگا وہ مزید کھڑی رہی تو ایڑیوں سے خون نکل آئے گا۔ گھر خالی پڑا رہا۔ جانے کتنے ہی پہروں بعد حنیفہ گھر میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر چونک سے گئے۔ وہ یک ٹک جانے کون سے غیر مرئی نقطے کو کھول رہی تھی۔ وہ آگے بڑھے، پھر اس کا ساکت چہرہ دیکھا۔ سیلین بیٹے کیا ہوا ہے؟ وہ جیسے ان کے پوچھنے پر چونکی تھی، پھر انہیں دیکھا۔ میں کیسی بیٹی ہوں پاپا؟ وہ اس کے بے وقت کے استفسار پر حیران ہوئے تھے، پھر اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ بہت پیاری، ایسے نہیں، میں کیسی انسان ہوں، میں ایسا ہیومن کیسی ہوں؟ وہ چند پل اسے دیکھتے رہے تھے، پھر ہلکا سا مسکرائے۔ تم قطع رحمی سے انتہائی نفرت کرنے والی، رحم دل، بے وقوف اور نرم سی انسان ہو۔ کیا قطع رحمی کرنا اتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ کیا اس کی سزا اتنی کٹن ہوتی ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کو آئندہ کبھی دیکھنا ہی نہ چاہے؟ کچھ تھا اس کے اندر جو ٹوٹ رہا تھا۔ یاسر ہرٹ ہوا تھا اور اس کا ہرٹ ہونا اب اسے پوری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ حنیفہ چند پل اسے دیکھتے رہے تھے، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر نرمی سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنی ماں کو معاف کر چکا ہے، لیکن وہ اس تکلیف کو نہیں بھلا سکا جو اس رات اسے ہوئی تھی۔ بھری دنیا میں اکیلے رہ جانے کی اذیت نے اسے بہت اندر تک زخمی کیا ہے بچے۔ وہ بس اس تکلیف سے ہر لمحہ گزرنا نہیں چاہتا۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ اگر وہ زیادہ دیر تک اپنی ماں کے آس پاس رہا تو انہیں اپنے الفاظ سے زخمی کر دے گا، اسی لیے وہ ان کا سامنا کرنے سے کتراتا ہے۔ وہ خود کو اور انہیں ہر اذیت سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ چپ چاپ ان کے سینے سے لگی رہی تھی۔ کچھ لمحات بعد وہ بالکل خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی۔ حنیفہ نے اسے پلٹ کر لمحے بھر کے لیے دیکھا
और गहरा सांस भरते फिर उठ खड़े हुए। काफ़ी लम्हात बाद वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। यासिर अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने हनीफा के कमरे के बंद दरवाजे को एक नज़र देखा और फिर बाहर की जानिब बढ़ी। अगले ही पल अब वो अरमान को फ़ोन भी कर रही थी। यह क्लक थी उसका दिल बेचैन होने लगा था। अरमान, यासिर कहाँ है? वो फ़ोन नहीं उठा रहा मेरा। उसने फ़ोन कान से लगाए तेज़ी से कहा था। दूसरी जानिब अरमान की बात सुनकर उसके असाब लम्हे भर को टीले पड़े थे। फिर उसने फ़ोन कान से हटाकर कदम कार की जानिब बढ़ाए। वो एजेंसी गया है। उसने कार रिवर्स की थी। वो जब भी अकेले रहना चाहता है तब एजेंसी चला जाता है। कुछ वक्त पहले ही मुझे एजेंसी के सिक्योरिटी गार्ड का मैसेज मौसूल हुआ है कि यासिर एजेंसी आया है। वो अब बिना कुछ सोचे एजेंसी के रास्ते पर बढ़ रही थी, लेकिन वो निचले फ्लोर पर नहीं गया होगा। उसने कार पार्किंग लॉट में रोकी और फिर तेज़ी से बाहर निकल आई। अब उसके कदम सीनों की जानिब थे। वो उसी गुलाबी लिबास में मलबूस थी। खुले बाल पुष्ट पर बिखरे थे। वो एजेंसी की छत पर गया होगा। वो हमेशा वहीं जाता है। सबसे ख़तरनाक स्पॉट पर टांके लटकाए बैठा होगा। एजेंसी के सीने तारीकी में डूबे हुए थे, लेकिन वो इस समय कुछ भी नहीं सोच रही थी। अगले ही पल तकरीबन हाँफते हुए उसने छत का दरवाज़ा खोला और फिर आगे बढ़ाई। वो सामने ही विराजमान था, सस्पेंडेड में मलबूस, छत के सबसे ख़तरनाक हिस्से पर बैठा। एजेंसी की इमारत कई मंजिला बुलंद थी, लेकिन वो उसी बेखौफी से पैर लटकाए छत के खौफनाक एतराफ़ में बैठा था। लम्हे भर के लिए उसका दिल बंद हुआ था। कुछ महसूस करके यासिर ने चेहरा फेरा और फिर साकित हो गया। आंखों में हैरत सी उभरी। वो शायद इस समय सलीना की तवक्को नहीं कर रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी थी। प्लीज़ यहाँ से उतरो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कोई जगह है तुम्हारे बैठने की? पिछले ही दिनों मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक नौजवान पैर फिसलने के बायस ऊंची छत से नीचे जा गिरा था। उतरो यहाँ से, जल्दी। यासिर ने चेहरा फेर कर गहरा सांस लिया था, फिर सर हिलाकर पैर छत की जानिब घुमाए। अगले ही पल हाथों पर जोर देकर छोटी सी छलांग लगाई और उतर गया। सलीना ने सीने पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया था। उसे लगा वो कई पैरों से सांस रोके हुए थी। फिर एक तेज़ नज़र उस पर डाली। 2 कदम चलकर आगे बढ़ी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कोई बैठने की जगह है? क्या दुनिया में बैठने की तमाम जगह ख़त्म हो गई थी जो तुम छत के इतने ख़तरनाक हिस्से पर आकर बैठते हो? इसे जैसे उसकी बेवकूफ़ी पर यकीन नहीं आ रहा था। तेज़ी से बोलते हुए सांस फूल गया था और अब वो हाँफ रही थी। यासिर ने इसे उसी खामोशी से देखा था। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कोई ज़ख्मी भी हो तुम, लेकिन मजाल है जो ज़रा भी एहसास हो अपनी सेहत का। वो आगे बढ़ा और फिर उसी खामोशी से उसकी कलाई थामकर उसे आगे किया। उसकी चलती ज़ुबान अगले ही पल साकित हुई थी। शहर की रोशनियां छत के उस हिस्से से इतनी हसीन लग रही थी कि उसे अपनी हर बात भूल गई थी। चंद पल के लिए वो बिल्कुल मेस्मराइज हुई उन कमकमों को देखे गई। कितना ख्वाबनाक सा मंजर था। मैं यहाँ खुदकुशी करने नहीं आया था, सुकून लेने आया था, जो कि आपके आते ही गारत हो चुका है। मैं परेशान हो गई थी यासिर, उसने चेहरा फेर कर सच्चाई से कहा तो उसने गहरा सांस लिया। अब वो दोनों चेहरा सामने किए शहर की रोशनियों को तक रहे थे। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, अपना ख्याल रखना आता है मुझे। तुम हर दफ़ा मेरे पीछे ऐसे नहीं आ सकती। आवाज़ हल्की थी, चेहरा सामने था, ऐसे जैसे वो उसे कुछ समझा रहा था। और तुम? सलीना ने कहा तो उसने हाथ जेबों में अड़स लिए। मैं क्या? तुम जो हर दफ़ा मेरे लिए आते हो, तुम उन्हें इत्तेफाक समझ सकती हो, लेकिन मैं उन्हें मोहब्बत समझना चाहती हूँ। शहर की रोशनियाँ बेहद खूबसूरत थी। वो दोनों अब तक सामने देख रहे थे। हवा से उन दोनों के बाल उड़ रहे थे। सलीना के बाल उड़कर यासिर के कंधे को छू रहे थे। तुम मेरे लिए अपनी माँ से फेवर लेने क्यों गए थे? कुछ पल बाद उसने पूछा था। मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए तो किया, बिना किसी शर्मिंदगी के कहा। सलीना ने एक पल के लिए चेहरा फेर कर उसे देखा था। वो जैसे लाजवाब हुई थी। तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करते रहोगे। उसने कंधे उचकाए थे। और मेरे दिल का क्या? अब कि उसने भी गर्दन घुमाकर उसे देखा था। चंद पल वो दोनों एक दूसरे को तकते रहे। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो आई एम सॉरी। उसके कहने पर सलीना ने बेयकीनी से गहरा सांस लिया था। यही प्रॉब्लम है यासिर आलम, तुम मुझे हर्ट नहीं करते हो, तुम मुझे हर्ट नहीं होने देते हो। इसलिए मैं तुम्हारी इस नरमी का एक बहुत गलत मतलब निकाल रही हूँ। मेरी वक़्त पर तस्दीक कर दो। ऐसा ना हो कि तुम मुझे मेरी ज़िंदगी में आए हर मर्द से ज़्यादा हर्ट कर जाओ और मैं तुम्हें चाह कर भी मुआफ़ ना कर पाऊँ। कैसी तस्दीक? सलीना ने अपना सिरापा उसकी जानिब फेर लिया था, जबकि वो अब भी सामने देख रहा था। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? यासिर ने चेहरा झुकाकर अपने जूतों को देखा था, फिर सर उठाकर उसे।
नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, सुकून से कहा। तो सेलिना के दिल को कुछ हुआ, आंखों में कुर्चियाँ सी उभरी। अगर तुम जख्मी नहीं होते तो तुम्हें बहुत मारती। वो मुस्कुराया था। तुम अब भी मार सकती हो, बिल्कुल, ताकि सारी दुनिया मुझे ही जालिम समझे। हालांकि वो नहीं जानते कि यहाँ असल जालिम है कौन। जता कर कहा और फिर तेज से रुख मोड़ लिया। आंखों में जाने क्यों आंसू से तैरने लगे थे। उसका दिल जाने किस बात पर दुखा था। तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कुछ पल बाद उसने पूछा। तो सेलिना ने एक झटके से चेहरा उसकी जानिब फेरा। वो बगैर कोई तासुर लिए बहुत सुकून से पूछ रहा था। उसने अगले ही पल गहरा सांस लिया था। फैमिली ट्रिप पर जाना। फैमिली ट्रिप? हाँ। वो कहने के साथ ही अब छत की दीवार से लगकर ज़मीन पर बैठ गई थी। उसकी टांगें मुस्तकिल खड़े रहने के बायस थकन का शिकार हो गई थी। यासिर ने चेहरा झुकाकर उसे देखा और फिर उसके साथ आ बैठा। मुझे लगा था तुम कहोगी दुनिया का महंगा तरीन परस खरीदना। वो उसके कहने पर हंस पड़ी थी। फिर कुफ्की से उसे देखा। इतना मादियत पसंद समझते हो तुम मुझे? हाँ। वो फिर से हंसती थी। ये भी एक ख्वाहिश है, लेकिन फैमिली ट्रिप पर जाना सबसे बड़ी ख्वाहिश है। पता है, बचपन में जब स्कूल वाले ट्रिप्स पर लेकर जाते थे तो मैं नहीं जाती थी। मेरे पास ट्रिप के लिए पैसे नहीं होते थे। फिर जब मेरे ताया वाले अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर जाते थे, मैं तब भी नहीं जाती थी। वो लोग मुझे लेकर ही नहीं जाते थे। उन्हें लगता था मेरी सोहबत उनके बच्चों पर बुरा असर डाल देगी। बिल्कुल नॉर्मल से अंदाज में कहकर उसने यासिर को देखा था। और तुम अब भी उन्हें अपना रिश्तेदार मानती हो? वो जैसे हैरान हुआ था। उसने सर अस्पात में हिलाया। क्यों? उसके पूछने पर वह मुस्कुराई थी। जानते हो, एक राहब अपने साथी के साथ नहर के किनारे पर बैठा हाथ धो रहा था। उसी लम्हे एक बिच्छू दिखाई दिया जो नहर के तेज़ पानी के तहत बहता जा रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर उस बिच्छू को बचाया और उस बिच्छू ने बचते ही उसके हाथ को डस लिया। उसने घबराकर बिच्छू को छोड़ा तो वह फिर से पानी में गिर गया। अब वो छुपकर दोबारा उसे बचा रहा था और वह बिच्छू उसे दोबारा डस रहा था। उसके साथी राहब ने पूछा कि तुम उसे क्यों बचा रहे हो? ये 2 दफ़ा तुम्हें काट चुका है। जानते हो उस राहब ने क्या जवाब दिया था? वो लम्हे पर को ठहरी थी। वो चेहरा फेरे उसे ही देख रहा था। शायद वह जवाब का मुंतज़िर था। उसने कहा कि उसकी नेचर डसना है और मेरी बचाना। वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और मैं अपनी आदत से। हम दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर मजबूर हैं। इसीलिए यासिर आलम, बाज़ लोगों की नेचर हमेशा डसना होती है और बाज़ लोगों की मरहम रखना। मेरी नेचर जोड़ना है और उनकी तोड़ना। वो रिश्ते तोड़ने से पास नहीं आते और मैं जोड़ने से। आखिर में मासूमियत से कंधे उचकाए थे। कहाँ से सुनी है ऐसी बेकार कहानी? वो दीवार से सर टिका कर बोला था। सेलिना ने भी अपना सर पीछे टिकाया था। तुमने पूछा था कि मैं उन्हें अपना रिश्तेदार अब तक कैसे मानती हूँ? तो ऐसे मानती हूँ क्योंकि मैं एक राहब हूँ और वो सब बिच्छू। और यहाँ वो ज़ोर से हंसा था। आंखें मूंद कर दीवार से सर टिकाए सेलिना भी हंस रही थी। बिच्छू, ओह गॉड! वो दोनों हंसते जा रहे थे। कुछ पल बाद वो बाजुओं को घुटनों के गिर्द समेट कर एक रुखसार घुटने पर टिकाए उसे देख रही थी। यासिर के माथे पर गिरे बाल हवा से लहरा कर दोबारा माथे पर गिर रहे थे, लेकिन वो उन्हें पीछे करने का तकल्लुफ़ नहीं कर रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम देखते रहो और कभी ना थको? बेहद आहिस्तगी से पूछा था उसे देखते हुए। वो जो अपनी उंगली पर रपट लपेट रहा था चौंका, चेहरा उठाकर उसे देखा, खफीफ सा सर हिलाया। हाँ, कहाँ तो जाने क्यों आवाज़ बोझल सी थी। सरसराती हवा के झोंके जैसे चंद पल के लिए उन दोनों के दरमियान ठहर से गए थे। सेलिना को पलकें झपकाने में वक़्त लगा था। वाकई यासिर ने उससे निगाहें चुरा ली, फिर से रबड़ को उंगली पर लपेटने लगा, साथ ही सर भी अस्बात में हिलाया। क्या तुम्हें उस इंसान को देखकर ऐसा लगता है कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी से गया तो तुम खाली हो जाओगे? रुखसार अब तक घुटने पर टिका था। यासिर ने अब के चेहरा नहीं उठाया। हाँ, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि अगर तुम उसे देख ना पाए तो तुम्हारा सांस रुक जाएगा? और अब के उसने चेहरा उठा लिया था। सेलिना के सवालात पेचीदा होते जा रहे थे। हाँ, गले में गिल्टी सी उभर के मातूम हुई। क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि तुम उससे हर दफ़ा मिलने पर उसके साथ मज़ीद उलझते जाते हो? जितना दूर जाओ उतना करीब चले आते हो। हाँ, क्या कभी तुमने उस इंसान से दूर जाने की कोशिश की है? की थी, कामयाब नहीं हुआ। तकलीफ़ होती है ना? वो कहकर उदासी से मुस्कुराई थी। हाँ, क्या तुम जानते हो कि यू आर इन लव? येस आई डू। कौन है वो खुश नसीब लड़की? उसने चेहरा फेर कर उसे देखा था, फिर देखता रहा।
है एक इंतहाई समझदार लड़की। समझदार है? मैं तो हरगिज़ नहीं हूँ। फिर मायूस होकर कहा तो वो हंस दिया। उंगली पर रबड़ अब तक लपेट रहा था। मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान है। ऐसे इंसान का मौजूद होना ही सबसे बड़ी नेमत होती है। अच्छा बताओ, क्या वो भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी तुम उससे करते हो? अब कि वो बहुत दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसकी शहद रंग आंखों की चमक, वो उसे देख कर रह गया था। नहीं, वो मुझसे उतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मैं उससे करता हूँ। वो कर ही नहीं सकती। उसकी शहद रंग आंखों की पतलियों को अपनी पतलियों की कैद में लिए उसने कहा था। उसकी सरमई आंखों के रंगों पर दिल लम्हे पर को डोल सा गया था। सेलिना का दिल जैसे ज़ोर से धड़का। क्या तुमने उसे बताया है? कुछ लम्हात बाद सवाल किया तो यासिर ने सर अस्पात में हिलाया। वो जानती है। कितनी लकी है वो लड़की। मुझे बताओ ना, कैसी दिखती है वो? क्या वो जूलिया जितनी खूबसूरत है? नहीं, वो जूलिया से ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, तुम्हें उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? मुझे वो पूरी पसंद है, सारी की सारी। तुम्हें पता है मैं जेलस हो रही हूँ। और उसके कहने पर वह सर हिलाकर रह गया था। अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? कुछ पल बाद उसने पूछा था। वो दीवार से सर टिकाए आसमान की जानिब देख रहा था। अपनी फैमिली के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना, बगैर किसी रंजिश और तकलीफ़ के। उसने आहिस्ता से कहा था। सेलिना ने सर हिलाया। हम जैसे ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों की हर ख्वाहिश फैमिली के गिर्द ही घूमती है। फैमिली ट्रिप पर जाना, फैमिली के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना। कितनी महरूम ख्वाहिशें हैं ना हमारी। यासिर ने महज सर हिलाया था। क्या तुम अपनी मामा को माफ़ नहीं कर सकते? कुछ पल बाद उसने कहा था। उसकी आंखें जो लम्हे पहले तक बेहद ज़ख्मी लग रही थी, अब महज थकन का शिकार थी। लेकिन उसे की आंखें थकन ज़दा भी कितनी अच्छी लग रही थी। मैं उन्हें माफ़ कर चुका हूँ, बहुत पहले ही कर चुका था। फिर इतनी दुरुस्ती से क्यों पेश आते हो तुम उनके साथ? उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो शर्मिंदा था। ऐसे मत किया करो, वो बहुत हार्ड होती होंगी। माँ है वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगी। और भला मेरे लिए तलख कलामी करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम मुझे पसंद भी नहीं करते हो? तसल्ली देते देते आखिर में कदरे खुफी से कहा तो वह चेहरा झुकाए ही मुस्कुराया। अगर तुम मुझे पसंद करते और फिर मेरे लिए स्टैंड लेते तो वाह वाह, क्या बात होती, मज़ा आ जाता। लेकिन तुम, उसका तो मूड ही ख़राब हो गया था। इंसान होने के नाते भी स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ओह प्लीज़, उसने हाथ जोड़कर माथे पर लगाए थे। तुम्हारे इस ह्यूमैनिज़म की वजह से मैं आज कहाँ पहुँची हूँ, ऐसी जगह पर जहाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनफैक्ट करीब करीब उकताते हो मुझसे मेरी बातों से। कितनी समझदार हो यार तुम। कैसे पता चला तुम्हें कि मैं तुमसे उकता रहा हूँ? हैरत से आंखें फैलाकर कहा था। सेलिना सुन हुई उसे बेयकीनी से देखती रही। बदतमीज़, मैंने महज इसलिए कहा था ताकि तुम कहो कि नहीं सेलिना, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तुम। इसने उसका सर फाड़ने के लिए आसपास कुछ तलाश किया, लेकिन कुछ भी ना मिला। यासिर अब एहतियातन उसके पास से उठ खड़ा हुआ था। छत पर एक जानिब बहुत से पौधे रखे थे और उसके दरमियान ही एक लंबा सा पाइप गिरा था। उसकी आंखें चमकी। वो उठी और फिर आगे बढ़कर नल का तलाश किया। यासिर उसे पीछे से तनबीहा कर रहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। उसने टूटी चला दी थी और पानी किसी फव्वारे की मानिंद पूरे प्रेशर से बाहर निकला था। अब वो पाइप लिए यासिर के पीछे थी और वह बमुश्किल खुद को भीगने से बचाता हुआ दूसरी जानिब भाग रहा था। वो हंस रही थी। उसने पाइप का रुख यासिर की जानिब किया और वह अगले ही लम्हात में भीग गया। अब भागने की पारी उसकी थी, क्योंकि अब पाइप यासिर के हाथ में था। वो उसके पीछे था और वो उसे मना कर रही थी। बाल, लपास, छत, पौधे, सब कुछ पानी में नहा गया था। वो अब एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे, हंस रहे थे, लड़ रहे थे। अगले ही पल यासिर ने पाइप का रुख ऊपर की जानिब किया तो पानी किसी पचाड़ की मानिंद हर जानिब बरसने लगा। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो हम क्या करेंगे? उसने पूछा था। लेकिन यासिर को अगले ही लम्हे पाइप छोड़ना पड़ा। छत का दरवाज़ा खोलकर सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लिए अंदर दाखिल हो रहा था। तो हम ये करेंगे। उसने उसे कलाई से थामा और फिर तेज़ी से दूसरे दरवाजे की जानिब बढ़ा। गार्ड अब उन्हें रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वो रुकने के लिए तो नहीं भागे थे ना। वो अब हंसते हुए तेज़ी से जीने उतर रहे थे। जीने पार करने के बाद वो दोनों सेलिना की कार की जानिब बढ़ आए थे। वो अब तक हंस रही थी, लेकिन वो महज मुस्कुरा कर ड्राइव कर रहा था। घर आ गया था, लेकिन फिर उन दोनों को किसी चीज़ का एहसास हुआ, अपने भीगे होने का। बाहर बारिश हो रही है क्या? सलमान ने उसे सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा था।
एजेंसी की छत पर हो रही थी। उसकी ज़ुबान से फिसला तो अरमान की हंसी उभरी। वॉट? दूसरी जानिब हनीफा फिक्रमंदी से चीखती हुई सेलिना को देख रहे थे। तुम कहाँ से आ रही हो? बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं पापा। तो फिर? वो, मैं पानी में गिर गई थी। कहने के साथ ही उसने ज़ुबान दांतों तले दबाई थी। क्या मतलब? पानी मुझ पर गिर गया था। इतना पानी आया कहाँ से? पाइप से। वो कहते ही फिर चीखी थी। हनीफा अब फिक्रमंदी से उसकी जानिब टिश्यू बढ़ा रहे थे। एजेंसी की छत पर उनके पूछने पर वो चीखा था, मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने से। देखो अब ज़ुकाम हो गया है तुम्हें। वो कदरे फिक्रमंदी से उसकी सुर्ख नाक देख रहे थे। और फिर उस रात दोनों घरों में वो दोनों वक्फे वक्फे से छींकते रहे थे। वो अरमान के कमरे में चला आया था, साथ ही छींका भी। तो पीछे से अरमान का कहका बुलंद हुआ। उसने एक तेज़ नज़र उस पर डाली थी, फिर सर झटक कर चेहरा वापस फेरा। एजेंसी की छत पर बारिश। उफ! वो हंसते हंसते दोहरा होने लगा था। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि सेलिना ने अपने घर क्या कहा होगा, और यहाँ पर वो भी ठहरा था क्योंकि वो वाकई जानना चाहता था कि सेलिना ने अपने घर क्या कहा था। इतना सारा पानी एक साथ मुझ पर कैसे गिर सकता है यासिर? अपने मोबाइल पर सेलिना का पैगाम देखकर उसे बेतरह हंसी आई थी। यकीनन उसे हनीफा को जवाब देने के लिए किसी मजबूत जवाब की ज़रूरत थी। पाइप से, उसने लिखा और फिर लिबास तब्दील करने के लिए जो ही उठा, फ़ोन पैगाम की टोन से बच उठा, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूँगी यासिर। और वो मोबाइल साइड टेबल पर रखकर हंस दिया था। इतना सारा पानी एक साथ किसी इंसान पर कैसे गिर सकता है अरमान? उसने अलमारी से लिबास निकालते हुए पूछा था। एजेंसी की छत पर होती अकलौती बारिश से, और कैसे भला? और कहते ही वो दोनों हंस पड़े थे।